Good morning, students. I hope all the students are doing their work regularly, and these videos help them so much in doing their and understanding the concept of this salts. Now, students, we will see this video from the topic bleaching powder. So, from where we are seeing this one, students? So we will see from its bleaching powder. Students, we have explained, I have already explained from about bleaching powder. Now we will see what is the color of this bleaching powder. The color of this bleaching powder is white color. Okay, it is a white color. Okay, and gives a strong smell. And gives a strong smell. कैसे स्मेल आती है बेटा इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल दैट इज द स्मेल ऑफ क्लोरीन किसकी स्मेल होती है वो क्लोरीन गैस की स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग सो इट इज़ ए वाइट पाउडर इट इज़ वाइट powder. What is the color? If the board asks what is the color of the bleaching powder, it is white color powder. Okay, and strong smell, how will you identify this is bleaching powder? Strong smell of chlorine coming from this white powder, then we can say it is bleaching powder. Now I told how it is prepared. When slake lime के अंदर से chlorine gas, when this dry slake lime and chlorine, when they are reacting, then we will obtain this bleaching powder. What is its chemical name? Calcium oxychloride. That is calcium oxychloride. What is it? Its chemical formula CaCO2. This is the formula of ब्लीचिंग पाउडर. नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया क्यों है. एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड actually in the various purposes, but here the main motive is to store chlorine. We cannot see bleaching this it is very difficult to store. It is very difficult to store. Okay, it is very difficult to store. Sorry students, store. It is very difficult to store and use it. So chlorine gas is very difficult to store and use it. That's why we will make bleaching powder. Then हम क्या बनाते हैं bleaching powder. Now when we require this chlorine gas, how we will separate. इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर से हम सेपरेट कैसे करेंगे क्लोरीन को. हाउ इट विल सेपरेट when this calcium oxychloride is treated with dilute excess amount of diluted H2SO4. Okay, this excess amount of diluted, when both are react, then we get one is calcium sulfate student, plus next is chlorine, and third is water. Okay, now we obtained chlorine हमें मिल गया. Now that's why we'll use this. That's why we'll make this bleaching powder by the action of this diluted excess amount of diluted acid on this bleaching powder, and we will separate this chlorine. So the main bleaching agent in bleaching powder is chlorine. Okay, now we have other things, its uses and all these things we have talked in the earlier videos also. Now students, we will see the next topic. Okay, and the next topic क्या है students? This next topic is baking soda. Okay, now see this baking soda students. Baking soda is very very important. आपने किचन में भी देखा होगा बेकिंग सोडा को, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? मीठा सोडा. ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ा जो नरम वगैरह बनाने के लिए, सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक्स वगैरह को बनाने के लिए वी आर यूजिंग दिस baking soda. Okay, now later we will see. So it is, and one is like this gram, you can say चना वगैरह चीज़ें जो होती है, इसको फास्ट कुकिंग में भी, ताकि उनकी कुकिंग फास्ट हो जाए, दैट्स वाई ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस बेकिंग सोडा ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट, द मेन थिंग इज द क्वेश्चन इज always ask what is the formula of baking soda. Formula is NaHCO3. Understood? Formula is NaHCO3. Now next is what is the chemical name. This is the common name. Baking soda is common name. And what is its chemical name? Sodium hydrogen carbonate,
और यू कैन से सोडियम, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, बाइकार्बोनेट। सोडियम, आई एम राइटिंग है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो आप, एंड बाइकार्बोनेट ऑल्सो, बाइकार्बोनेट ऑल्सो वी कैन राइट, यहाँ बाई की जगह पे वी कैन राइट हाइड्रोजन ऑल्सो, ओके, HYDROZ, ओके। So its chemical name is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Don't write, if you write here hydrogen, then don't write bi. Okay, bi means this, bicarbonate means HCO3. Okay, and this is sodium. So baking soda. Now how we will make this baking soda? First we will use brine. Brine क्या होता है students? We have talked in the previous videos also. When this concentrated solution of NaCl, concentrated solution of सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हो गया, NaCl और वाटर को जब हमने मिक्स किया, ओके, एट सोडियम वी विल, दिस सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड NaCl, ओके, NaCl ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए इस वाटर में, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। व्हेन ब्राइन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, NH3 इज व्हाट, अमोनिया, देन वी विल ऑब्टेन दिस बेकिंग soda, you can say sodium hydrogen carbonate, ओके। नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन को, बेकिंग सोडा को, जब हम मान लो सपोज़ यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर सपोज़ मैंने चना रखा है, ओके, ग्राम डाला हुआ है, देन दिस बेकिंग सोडा इफ़ आई विल पुट इन दिस वन, देन हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे कुकर के अंदर, जब हम इसको हीट देंगे, ओके, इस सपोज दिस इज़ ए कुकर, ओके, ये कुकर है, इसके अंदर मैंने ग्राम रखा हुआ है, चना है, और इसके अंदर मैंने एक स्पून किसकी डाल दी, मैंने बेकिंग सोडा की डाल दी, ओके। देन व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, हीट की वजह से क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे, देन वी विल गेट द सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर क्या बचेगा, सोडियम कार्बोनेट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउटसाइड, ओके, एंड वाटर इज अलॉन्ग विद द water also. So the question I want to explain here, I want to understand here, that sometime there is asked, what is the action of heat if this substance is heated, if this substance is heated, what is its action, क्या produce होगा, then the product is sodium carbonate, water and carbon dioxide. Now if this baking soda is added in this making cakes and this one, then what happen, see students, one thing I want to tell you, first I want to differentiate between this baking soda and baking powder. This is baking soda, I am writing here baking powder, baking powder. नाउ क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, बेकिंग सोडा तो एक सिंगल कंपाउंड हो गया NaHCO3, अब इसको मुझे पाउडर बनाना है, तो व्हाट आई विल ऐड, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाना है, तो मैं क्या रखूँगी यहाँ पे, सोडा को पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग सोडा की जगह पे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए NaHCO3, और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में माइल्ड एडिबल टार्ट्रिक एसिड, कोई भी कौन सी एसिड मिक्स कर दूंगी, टार्ट्रिक एसिड, माइल्ड, एनी माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड कौन सी होती है बेटा, द एसिड विच इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, विच वी कैन ईट, ओके, लाइक सिट्रिक एसिड, सो मैनी सिट्रिक एसिड आर देयर ना, सो एनी माइल्ड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड when we mix together, that is called baking powder, that is will not called baking soda. Now you able to ask, if they will ask, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेकिंग सोडा इज मेड अप ऑफ व्हाट, बेकिंग सोडा इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अदर इज टार्ट्रिक एसिड, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों जो ये ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों कब रिएक्ट करेंगे, जब इन दोनों के अंदर क्या ऐड कर देंगे, वाटर, जब इन दोनों के अंदर वाटर ऐड करेंगे, देन दे विल रिएक्ट, अंडरस्टूड। नाउ हम बेकिंग सोडा NaHCO3 को अलोन क्यों नहीं रख सकते, हमें क्यों ज़रूरत है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड मिक्स करने के लिए, ओके, द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के अंदर, मान लो मुझे ब्रेड, आई वांट टू मेक ब्रेड, आई वांट टू मेक दिस केक्स,
तो व्हाट हैपन, जब मैं इसको ये करूँगी और थोड़ा उसको बेक करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें पीछे क्या बच जाता है, तो पीछे बचेगा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। अंडरस्टूड? पीछे क्या बचेगा, सिर्फ केक के अंदर अगर मैंने सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया केक के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, जब हम केक को हीट करेंगे, बेकिंग करेंगे ब्रेड वगैरह को, देन व्हाट विल हैपन, दिस वाटर is released and carbon dioxide produced. Now the left substance is sodium carbonate. Now sodium carbonate का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और बेस हमेशा कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। अगर बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होगा, इसका मतलब अगर मैंने खाली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा डाला है, देन व्हाट विल हैपन, जब हम उसको बेक करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बचेगा पीछे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होगी जो उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाते हैं, बट ये इसका नेचर बेसिक हो गया, और बेसिक नेचर के कारण इसका टेस्ट कैसा हो गया, बिटर। तो हमें केक या ब्रेड का टेस्ट कैसा आएगा, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट आएगा। देन व्हाट वी विल डू, सो और स्लाइटली वो थोड़ा हार्ड भी बन जाएगा। देन व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या मिला देते हैं, NaHCO3, दिस सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम स्मॉल अमाउंट में टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं। एंड when we add water in this two substances and this water is mixed with the dough, किसका आटा गूंद रहे हैं, जब हम ब्रेड बनाने के लिए जो आटा गूंद रहे हैं उस आटे के अंदर हमने ये मिक्स कर दिया, देन व्हाट हैपन, दिस इज एसिड, ओके, दिस इज बेस। नाउ दिस एसिड विल न्यूट्रलाइज दिस बेस and the salt produce that will give a nice taste। उसका टेस्ट कैसा होगा, बिल्कुल नाइस, अच्छा टेस्ट प्रोड्यूस होगा, स्वीट स्मेल, अच्छी सी स्मेल उसके अंदर से आएगी, एंड द टेस्ट विल बी नॉट, it's not sour also and not bitter in taste, so students the taste will also be nice। now I think आपको समझ आ गया कि बेकिंग सोडा खाली होता है NaHCO3, और बेकिंग पाउडर क्या होगा, NaCO3 और टार्ट्रिक एसिड दोनों का मिक्सचर। ये दोनों कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ये दोनों को अगर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे, नो, दे विल रिएक्ट ओनली व्हेन वाटर इज एडेड इन दिस वन। और वाटर इसके अंदर ऐड करके उस वाटर से हम क्या है, ब्रेड जिस आटे से बनाने होते हैं उस आटे को गूंथते हैं। देन व्हाट हैपन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिलीज फ्रॉम दिस वन, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का उस आटे के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा गैसीय मात्रा में होती जाएगी, तो वहाँ से वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर फूल जाएगा, उस डो का, आटे का वॉल्यूम क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा उस वॉल्यूम, और वहाँ पे जैसे ही गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी उस आटे के अंदर से, तो इसका ये फ्लफी थोड़ा सा फूल जाएगा और वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। और ऐसे ही इसको जब हम ब्रेड को बेक करेंगे तो इसका टेस्ट भी हमें अच्छा आएगा। अंडरस्टूड? now we will able to understood this concept। now students we will see uses of sodium hydrogen carbonate, where we are using this sodium hydrogen carbonate, it is used as soda acid fire extinguisher। एक तो हम इसको जो आग बुझाने वाली चीज़ होती है ना, फायर एक्सटिंग्विशर जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें देखो कैसे आग बुझाता है, ये हमने एक में उसके अंदर लिया, मान लो ये आग बुझाने वाली चीज़ है, फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिया बेकिंग सोडा, और इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है एसिड, जिसको आप कह सकते हो H2SO4 एसिड या HCl एसिड, कोई भी एसिड है। तो जब ये दोनों चीज़ रिएक्ट करेंगे, NaHCO3 ये क्या है, बेकिंग सोडा, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मालूम है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ स्लाइटली हैवियर देन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से क्या होती है, थोड़ी सी हैवी होती है। तो जो भी चीज़ जल रही होती है ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना लेगी यहाँ पर, इसके जो चीज़ जल रही होती है उसके बाद, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज cut off and the substance will stop burning। Understood? So it is used in fire extinguisher also। Second, it is an antacid। Second, this sodium hydrogen carbonate is used as an antacid। Where it is used as an antacid, suppose we are eating anything, then we will get acidity in our stomach, then this acidity is relief. How we will get the relief? One is I told magnesium hydroxide, that is milk of magnesia। Second, we will take this sodium hydrogen carbonate। Second, we will take sodium hydrogen
carbonate, and this sodium hydrogen carbonate, students, it will neutralize this because it is a base, and this base neutralize excess acid present in the stomach. Third thing, students, I want to tell that this sodium is also used in this baking soda, so powder is also used in making baking powder. This baking powder बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बेकिंग सोडा, देन ओनली वी विल मेक बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? सो बेकिंग सोडा चाहिएगा हमें. देन बेकिंग सोडा के अंदर व्हाट वी विल ऐड? टार्ट्रिक एसिड. देन वी विल गेट दिस बेकिंग पाउडर. अंडरस्टूड? नाउ we will see this washing soda. How now you will concept this one. अच्छा, इसका बोर्ड में बताती हूँ थोड़ा स्टार्टिंग से कैसे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स. लेट आई विल टेल यू. इन बोर्ड द क्वेश्चन इज मोस्टली के one substance which is used in making bread, is used in making cakes and also making the pakoras crispy and tasty. What is the name of that substance? So the name of that, what is the formula of that substance? The formula is, what is the name of that substance? That is this one. And what is its common name? Common name is baking soda. Now how it is prepared? It is prepared by all these things. The next question they will ask, if we will heat it, what happen? अगर इसको ऐसे heat करेंगे, then what happen? Sodium carbonate, water and carbon dioxide produced. Okay, all these things, this type of question always asked by the board in many times, and they will sometime ask the users also. Next we will see, students, next topic. Okay, so next, students, we will see the washing soda. Student, washing soda and this one are same. और कैसे सेम है? लेट्स आई विल शो यू. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया. स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया. सोडियम कार्बोनेट से क्या प्रोड्यूस? स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड हो गया. ना व्हाट हैपन? सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होने के, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट किया, सोडियम कार्बोनेट बन गया. अब लिसन स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम, इफ़ वी विल ऐड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, इफ़ वी विल ऐड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट वॉशिंग सोडा. और ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये किस तरीके की फॉर्म में है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? ये ऐसे नहीं कि आपको पानी की तरह दिखाई देंगे. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे. क्रिस्टल्स जैसे चीनी के दाने होते हैं, आपने देखा होगा वॉशिंग सोडा को छोटे छोटे दानों के रूप में. ओके, तो क्रिस्टल्स के समय हमें ये दिखाई नहीं देंगे, वाटर इसके अंदर है, बट इसको हीट करते हैं तो वाटर रिलीज होगा. सम टाइम स्टूडेंट्स, ये वाटर है ना, इट इम्पार्ट कलर टू द दिस केमिकल्स ऑल्सो. जो भी केमिकल है उसके अंदर अगर वाटर एडेड होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं हीट करके, देन द कलर ऑफ दैट सब्सटेंस इज समटाइम चेंज. So what we will say, why the color of that substance, like copper sulfate, you have seen the color of the copper sulfate is blue. Why it is blue? Because of the presence of water. Water किस तरीके से present है? In the form of crystals. Crystals के रूप में water present होता है. Now students, what is its chemical name? Its chemical name is sodium carbonate decahydrate. What is its common chemical name? It is not written here, I will tell you. Sodium carbonate, deca means 10, decahydrate, hydrate. Hydrate means, student, what? Hydrate means water जिसमें present हो. Anhydrous, water remove हो. तो sodium carbonate decahydrate, this is the name of this one. What is its formula? Na2CO3 10H2O. Okay, its common name is washing soda. Understood, students? And this washing soda is prepared. How it is prepared? You will write the reaction. If it is in 2 marks, no need to write there, you will start from here. But if it is for 5 marks, then you start from baking soda. Okay, now students, this is very very important. Now you will, when this sodium carbonate is called soda ash. This is called soda
एश व्हेन दिस वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर से अगर हमने ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड Na2CO3. दिस इज कॉल्ड this is called students. Okay, go from here better. All the some students are making noise, so please be quiet, students. Sodium carbonate. Now this soda ash, why it is called soda ash? Because this when water molecules are removed from this washing soda, then it is called soda ash, or it is also called anhydrous sodium chloride. This anhydrous, HYDROUS, anhydrous, आई एम राइटिंग फॉर्मूला ओनली, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. इसका मतलब क्या है? इसके अंदर से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मीन्स व्हाट, क्या है? इसके अंदर से स्टूडेंट्स वाटर रिमूव कर दिया है, Na2CO3 डॉट 10H2 को रिमूव कर दिया ना, देन इट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और यू कैन से सोडा एश. ओके, now we will see the uses. What are its uses? Now students, see, uses are very it is where we are using this one. One is sodium carbonate is used in making glass बनाने में, soap बनाने में, and in paper industry also it is, washing soda is used. Next, it is used in the manufacture of sodium compounds. सोडियम का एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स. यू विल सी हाउ बोरेक्स इज मेड इन द क्लासेस +1 +2. ओके, सो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम का एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स. थर्ड, इट इज़ यूज इन क्लीनिंग ऑल्सो, like we are cleaning our clothes, because in the clothes are dirty, to remove dirt, grease, all these things, so we will use sodium carbonate. Last, we will use removing permanent hardness of water. hardness क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पानी खारा होता है, तो इट इज़ टेम्परेरी हार्डनेस भी होती है. टेम्परेरी यानी थोड़ी देर के लिए पानी खारा हो गया, और परमानेंट जो हमेशा से पानी वहाँ पे खारा था. तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव. उस पानी की परमानेंट हार्डनेस, वो परमानेंटली उस खारे पानी को हम सॉफ्ट वाटर बना देंगे. सॉफ्ट वाटर मीन्स जो वाटर सही है, जो खारा नहीं रहेगा. तो दैट इज़ यूज बाय हाउ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, और यू कैन से सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट टॉपिक, crystallization of salt, या water of crystallization, we will see in the next topic, students. So I hope this topic is clear. Any doubt you can ask me also. And students, now we will stop this one and we will see the next topic in the next videos. Thank you.